A warm good morning, my dear students. Welcome back to online classes. Students, let's continue the chapter 6.3 Mahatma Gandhi leads the nation. Student, as you know that we all know that after returning to India in 1915, Gandhiji traveled to various parts of the country. He wanted to know more about the people of our country. Okay. He saw that the people of India is very poor. Then he was shocked. Why he was shocked? Because there was lots of social evils like sati pratha, widow, caste system. Okay, they keep the people divided and backward. Student, you know that sati pratha is what? You also know about child marriage, what happened to the widow's lady. So he's totally shocked and he's decided to do something for them. जब गांधी जी 1915 को इंडिया आते हैं तो वो इंडिया लोगों के बारे में जानने के लिए उनके पास जाते हैं। जब वो जाके देखते हैं कि इंडिया में बहुत ही बुरी तरह से सोशल इवल्स इंडिया को खाया जा रहा है, तो क्या क्या सोशल इवल्स जो मेन था वो था चाइल्ड मैरिज, मीन्स छोटे बच्चों का शादी हो जाना, सती प्रथा। यू नो द मीनिंग ऑफ सती प्रथा? सती प्रथा में क्या होता है? ऑलरेडी टोल्ड यू इन लास्ट क्लास, इन प्रीवियस चैप्टर। आफ्टरवर्ड्स विडोज रीमैरिज एक्ट, ये साथ ही साथ कास्ट सिस्टम, जिससे वो पीपल्स को और डिवाइड और बैकवर्ड कर रहे थे। ही रियलाइज दैट दिस सिस्टम kept the people divided and backward. Okay, he realized that he was there were not developed. That's why the India was not developing. What are the reason India was not developing? The main reason is social evils. Gandhi ji also see that so that the low class or low caste people were called untouchability was treated very badly. गांधी जी ने देखा कि जो लो कास्ट के पीपल हैं अनटचेबिलिटी के साथ उनको बहुत बुरे तरह से ट्रीट करते हैं, बहुत बैडली। लो कास्ट पीपल मतलब जो क्षुद्र जाति के थे, जो छोटे कास्ट के पीपल थे, उनको बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था। ही रियलाइज दैट he really worked toward for him and he worked for him and fulfill his aim. उन्होंने रियलाइज़ किया और उनके लिए वर्क किया। उन्होंने क्या वर्क किया? ताकि लो कास्ट के पीपल के साथ बुरा व्यवहार ना किया जाए। ही रीनेम अनटचेबिलिटी एज हरिजन विच मीन्स पीपल ऑफ गॉड। सो व्हाट हैपन? ही वांट टू से दैट एवरीवन that we all are equal. We all are the child of God. There are no such thing like higher class, upper class or lower class. So there was nothing like that. We all are equal. उन्होंने अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए एक नया नाम बनाया, उसका था हरिजन। हरिजन मीन्स जो कि पीपल ऑफ गॉड, भगवान के बच्चे। और लोगों को उन्होंने ये बताया कि अपर क्लास, हायर क्लास, लोअर क्लास कुछ नहीं होता है, हम सब एक हैं। ओके स्टूडेंट, और जिससे क्या हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दिस इक्वलिटी, जो ये इनका ये जो क्वालिटी था, हाँ, इससे क्या हुआ? ऑल पीपल्स आर सपोर्ट हिम एंड रेस्पेक्ट हिम एंड द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया एंड ही बिकम अ वेरी पॉपुलर एंड पीपल कॉल हिम बापू। जब उन्होंने कॉमन पीपल के बीच का ये भेदभाव को दूर किया, तब सभी लोग उनको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करने लगे, उनके बात को मानने लगे और क्विकली ही इज़ वेरी पॉपुलर एंड फेमस एंड पीपल कॉल हिम बापू। ओके स्टूडेंट, दिस मच यू नो। सो टुडे वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, द रिप्रेसिव ब्रिटिश लॉ। स्टूडेंट, look at your book, page number 118. Okay. During the First World War, the British government had made very irrepressible law.
People had no freedom of speech. They, they would be arrested for very petty things. Punishment were very harsh. However, people hoped that after the war, this law would be withdrawn. So they sought great patience. But when the war was over, even more strict laws are made. Now the government would arrest and put anyone in jail. There was no vakil, dalil or appeal. People protested very strongly against these laws. They called this law a black laws. They expressed their hatred for this law, though peaceful meetings and processions. But the British tried to suppress the people very cruelly. They lathi charged even women and children. The biggest example of their cruel was the massacre of the Jallianwala Bagh in Amritsar. What happens after when Gandhiji tried to fight for the social evils? After that, what happened? As you know that after First World, when there is the First World War, Indian soldiers totally helped the British people. Why they have the British people? They think that after First World War, British gave them freedom and they will be live a peaceful life. फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ? जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो इंडियन के जितने भी सोल्जर्स थे सारे ब्रिटिश को बहुत हेल्प करते हैं और वो ये सोचते हैं कि अगर ब्रिटिश जीत जाएगा तो वो इंडिया छोड़ के चले जाएगा और वो पेशेंस के साथ अच्छे से शांति से इंडिया में रह पाएंगे. बट ऐसा कुछ नहीं होता है. इन 1919 द ब्रिटिश स्टार्ट passes a new laws called रॉलेट एक्ट. ओके, 1919 में ब्रिटिश ने एक एक्ट बनाया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट. ओके, और दे कुड अरेस्ट. ये रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट इज Rowlatt Act, you must already I think know about Rowlatt Act. This act, after the First World War ended, the British become even a more harsh and hard towards the Indian people. Now, after the First World War, they started imposing fresh taxes on them. Okay, so they can compose the losses. Actually, they have lots of losses. To compress their losses during the First World War, they passes new laws to suppress India, and the new law was the Rowlatt Act. What is the main motive of the Rowlatt Act? On that Rowlatt Act, peoples are not allowed to make vakil, dalil or appeal. They will be arrested for very petty things. Punishment were very harsh, and the people will put inside the jail. क्या होता था इसमें कि छोटी छोटी गलती, कोई भी कॉमन गलती के लिए बिना उनसे बात किए उनको बोलने का हक नहीं था. उनसे कुछ पूछते नहीं थे और उनको जेल में डाल देते थे. जेल में डाल के उन पर अत्याचार करते थे. ये जो था, देयर इज़ नो वकील, दलील और अपील. वकील मीन्स एडवोकेट. ओके, दलील मतलब जो एडवोकेट हमारे लिए जो लड़ाई करता है कि हमने कोई गलती नहीं किया तो हमें जेल में जाना चाहिए, फिर हम अपील करते हैं कोर्ट में. तो ये सिस्टम को ब्रिटिश ने हटा दिया था कि आपको ना वकील के पास जाना है, ना आपकी दलील होगी, ना आपका कोई बात सुनेगा. कोई अपने लिए प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे. डायरेक्ट उनको जेल में डाल दिया जाता था और उन पर और भी स्ट्रिक्ट लॉ लगा दिए थे, जिससे कि पीपल्स बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और इंडियंस ने इसे ब्लैक लॉ कहा था, ब्लैक लॉज कहा था. ओके, हियर इज द ब्लैक लॉज, पीपल्स आर सेइंग हियर दिस इज ब्लैक लॉ. ओके, सो they want to protect from this law peacefully, and what they are doing on that time, what happened? Gandhiji asked the people to oppose this law, and Gandhiji started a satyagrah movement. Now you students, you must know the meaning of satyagrah movement. Satyagrah is a way of protecting against the non-violence method. जब गांधी जी ने देखा कि किसी को भी कुछ क्वेश्चन करने का हक नहीं है, कि उनको जेल में क्यों डाला जा रहा है, उनको पनिशमेंट क्यों दिया जा रहा है, ये इतने स्ट्रिक्ट लॉ क्यों बनाए गए, तब गांधी जी ने लोगों को अपोज किया. बोला कि आप इसके खिलाफ खड़े होइए, अपने हक के लिए लड़ाई कीजिए. और गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया. हक की लड़ाई करने का मतलब फाइट
गांधी जी फाइट नहीं करते थे, उनका जो ही वेपन था वो था नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। ओके, तो गांधी जी नॉन वायलेंस और ट्रूथ के साथ लोगों में आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने जो प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया नॉन वायलेंस मेथड का, ये इसके थ्रू उन्होंने क्या किया, एक पीसफुल मीटिंग रखा गया था। दे एक्सप्रेस देयर अपना नफरत दिखाने के लिए हेटेड फॉर द ब्रिटिश, दे मेड अ मीटिंग, पीसफुल मीटिंग रखा गया। मीटिंग कहाँ पे रखा गया था, जलियांवाला बाग मैसकर में। ओके, बट उसमें क्या हुआ था, जलियांवाला बाग मैसकर में एक मीटिंग रखा गया था, जहाँ पे कौन गए थे, जहाँ पे लेडी, बच्चे, वुमेन्स, मेन सब गए थे और उन पर बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज किया गया था और ब्रिटिश ने उनको बहुत क्रूरली उनको मारा था। दिस इज तो जलियांवाला बाग मैसकर में क्या हुआ था वो हम लोग कल पढ़ेंगे, नॉट टुडे। दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू।